Hello students, today we are going to see the numerical on projectile motion. But before that, what is projectile motion? Projectile motion is nothing but the particle it is projected along with initial velocity and some angle is called the projectile motion. There are two types of projectile motion. First is oblique projectile motion and second is horizontal projectile motion. These are the example of that oblique projectile motion. Means the particle which is trace that path with some angle is called the oblique or inclined projectile motion. Second type is horizontal projectile motion. The particle it is dropped from some height and it is horizontally dropped. That's why it is called the horizontally projectile motion. Then we are solving that numerical on oblique projectile motion or inclined projectile motion, there are different formula. But before that, yes, consider that particle which is projected with angle alpha. It traces some path, is like a curved path, and strikes the ground to the another point with initial velocity u and angle alpha. Then this curved path is nothing but the trajectory, and the horizontal distance between the point of projection is that, okay, and the point of strike is that. Then the total horizontal distance is called the range, and the particle which achieve the maximum height is called the maximum height or h max. The equation of trajectory is y equal to x tan alpha minus 1 by 2 gx square divided by u square cos square alpha. यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल आता है. न्यूमेरिकल में अगर वर्डिंग है डिस्टेंस गिवन है, मीन्स कौन सा डिस्टेंस, the particle it is passes through that point and point it is horizontally जो है it is above that point of projection और vertically भी उसका पोजीशन दिया है, मीन्स उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों भी दिया है. तब हम ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कर सकते. x और y की वैल्यू पुट की, उसके बाद आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल सकती है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल सकता है. सेकेंड फॉर्मूला हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, रेंज r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g. नेक्स्ट फॉर्मूला इज टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g. नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g. फर्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम. The particle is projected with an angle alpha. Alpha is what? Angle of projection, such that horizontal range is 3 times greatest height attained by particle. Find the angle of projection. आपको angle of projection find out करना है. उसके लिए रिलेशन दिया है horizontal range का और greatest height का. तो क्या रिलेशन है? It is 3 times the greatest height. तो हॉरिजॉन्टल रेंज किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R और मैक्सिमम हाइट h मैक्स. देन R का क्या फॉर्मूला है रेंज का? u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g. और h मैक्स का क्या फॉर्मूला है? u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g. तो इससे क्या क्या कैंसिल हो सकता है? u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब मुझे बताओ साइन 2 अल्फा क्या रहता है? साइन 2 अल्फा इज नथिंग बट 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा? यू स्क्वायर गेट कैंसिल, जी गेट कैंसिल, साइन अल्फा गेट कैंसिल. तो क्या रहेगा? 4 कॉस अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा, ये टर्म रहेंगी. उसके बाद अब कॉस अल्फा को मैं इधर लेके गई और ये 3 को इधर लेके गई तो क्या इक्वेशन आएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3. तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 53.13 is nothing but the angle of projection. Second numerical is
if a particle is projected inside a horizontal tunnel which is 5 meters high with velocity of 60 meter per second. Find the angle of projection and greatest possible range. क्या फाइंड आउट करने को बोला है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेंज. ओके, तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द हॉरिजॉन्टल टनल. हॉरिजॉन्टल टनल से क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट हो रहा है. तो हॉरिजॉन्टल टनल की हाइट क्या है? इट इज 5 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 60 मीटर. हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट आपको करना है. तो हाइट ऑफ टनल इज h, मीन्स क्या? मैक्सिमम हाइट कितनी है? 5 मीटर. अब जितना टनल की हाइट होगी उतना वो पार्टिकल वहां पे क्या होगा? स्ट्रक होगा, उस हाइट से स्ट्रक होगा. तो उस प्रोजेक्टाइल की एच मैक्स कितनी होगी? 5 मीटर होगी और वेलोसिटी की कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड. एच मैक्स का क्या फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2g. वैल्यू पुट करेंगे. एच मैक्स दिया आपको 5, यू दिया है 60 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81. g इज द वैल्यू ऑफ दैट g इज 9.81. तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा? अल्फा की वैल्यू मिलेगी. अल्फा की क्या वैल्यू है? 0.165. ये साइन अल्फा की है. उसके बाद अल्फा की वैल्यू 0.82, 9.58 है. यस. नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करने को बोला है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ये हमने फाइंड आउट किया 9.5 डिग्री है. यहाँ पे नहीं दिख रहा बट इट इज 9.5 डिग्री. रेंज क्या है? रेंज का क्या फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी. तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू है यू की 60, साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है 9.5, जी की वैल्यू 9.81. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रेंज आ जाएगा 119.6 मीटर. Next numerical is the horizontal component of the velocity of projectile is twice its initial vertical component. Find the range on horizontal plane if projectile passes through a point 18 meter horizontally and 3 meter vertically above the point of projection. क्या फाइंड आउट करने को बोला है? रेंज. ओके, क्या क्या दिया है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी. अब वेलोसिटी क्या रहती है? u. तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? u cos अल्फा. और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? u sin अल्फा. u cos अल्फा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? u sin अल्फा. तो उसका रिलेशन दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस इट्स इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट. तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यू गेट कैंसल. साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा इज tan अल्फा इक्वल टू 1/2. तो हम इससे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अल्फा की वैल्यू 26.565 है. अब देखो सेकेंड कंडीशन क्या दी है? इफ द प्रोजेक्टाइल पासेस थ्रू अ पॉइंट. ये जो पॉइंट है वो ट्रैजेक्टरी के ऊपर है. तो वो प्रोजेक्टाइल है वो उस पॉइंट से पास हो रहा है. वो पॉइंट हॉरिजॉन्टली 18 मीटर से है फ्रॉम दैट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से कितना है? वर्टिकली अबव 3 मीटर है. तो उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिया है. तो एक्स दिया है 18 मीटर और वाई दिया है 3 मीटर. तो अब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? रेंज केस में तो वो फॉर्मूला नहीं है, वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं है. तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करना पड़ेगा. तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. क्या कौन कौन सी वैल्यू आपके पास? y है इट इज 3 इक्वल टू x इज 18, tan अल्फा की वैल्यू है 26.565 माइनस 1/2, g की वैल्यू है 9.8, x की वैल्यू 18 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 u स्क्वायर. आपको u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. cos स्क्वायर 26.565. तो इससे आपको u की वैल्यू मिलेंगी इट इज 18.196. क्या फाइंड आउट करने को बोला है? फाइंड द रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन. इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से हमने फाइंड आउट किया
इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फिर हम पुट करेंगे रेंज के फॉर्मूला में. क्या है रेंज का फॉर्मूला? u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g. तो u का क्या वैल्यू है? 18.196 स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा की वैल्यू 26.565 डिवाइडेड बाय 9.81. इट इज 27 मीटर. थैंक यू.